Paul, Sushant sir, a lot of big warm welcome to you on IWM Buzz. This is your host Shubhajit. मुझे बहुत मजा आ रहा है. Thank you so much to e-greet you for the first time. इसके पहले meeting हुआ है. This is the first time we are having an e-meeting. Good, तो good. So very, very happy to be with you guys on IWM Buzz and Shubhadeep. Meet and greet दोनों हो गया अभी, ठीक है. of course, sir. But I'll be very honest. I have seen the trailer, but I haven't yet seen the. I mean, Jeet ki Zid. I'll be Series, very, yeah, there's no point lying. yeah, But I saw the trailer and the impact that the trailer had. yeah, It gave me goosebumps because first of all, it's based on the character of a real life hero, and anything which is yes, realistic, it gives you goosebumps. And the way you were pushing Amit constantly, and the way he was also going about things. I mean, I just want to know the emotion part of it. That when you were shooting it at that point of time, script is different, acting is different, but just that when you're shooting something related to the army, does it still give you goosebumps? of course, it does, it does. You know, as अभी मैं अमित का इंटरव्यू पढ़ रहा था कहीं पे, अमित साध का. So he said कि जैसे ही आप आर्मी यूनिफॉर्म पहनते हो, एक तो वैसे ही कुछ अलग फीलिंग आ जाती है. So I completely agree with that. सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने से ही वो कॉस्ट्यूम है हमारे लिए, तो यूनिफॉर्म हम यूनिफॉर्म नहीं कह सकते उसको. इट इज आवर कॉस्ट्यूम. तो बट वो पहनते ही आपको एक अलग फीलिंग आ जाती है. एंड कि कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है फौजियों को, और उनकी जिंदगी से जुड़ी एक रियल स्टोरी हो, तब तो गूजबम्स भी आते हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी होता है कि यार वी शुड मेक स्लाइटेस्ट ऑफ एरर इन एनीथिंग. कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो यूनिफॉर्म को लेकर हो, रैंक को लेकर के हो, मेडल्स को लेकर के हो, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को लेकर के हो, मिशंस, गन कैसे पकड़नी है. वी वर वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. एंड we were honored to have actual ex special forces people on our sets. Gehlot Saab, Colonel Gehlot Saab and his son Major Arjun, वो खुद स्पेशल फोर्सेस में थे. एंड कर्नल साहब को तो युद्ध सेवा मेडल भी मिला हुआ है. दे वर गाइडिंग अस एट ईच स्टेप, एंड इट वाज अ प्रिविलेज कि हम एक्चुअल हीरोज हमारे साथ खड़े थे हमें गाइड करने के लिए. सो लव्ड इट, लव्ड द होल फीलिंग. Absolutely, absolutely, and I can only imagine because if I just get goosebumps while seeing the trailer and eventually the movie, then I can only imagine the kind of emotions you must have had because you were working in it. Taking forward the next question, you know, you are playing the life of a coach, a real life mentor who is actually responsible to get the best out of an individual. The cause might be different, the goal might be different, but in life, every individual who has a certain goal or objective in their life, they always need, to some extent, somebody to guide them. So, do you personally believe that anybody who actually has a mission, it is very important for that person to also have a life coach of that form? And did you actually have any life coach in your life? Because your objective was different to become an actor, but did you have coach like that who absolutely mentored you to the best way possible? Absolutely, Shubhadeep. I 100% agree with you. And जिंदगी में एक मेंटोर, जिसको हम सही बोले तो गुरु के बिना जीवन सफल नहीं हो सकता. मैं अभी कहीं और इंटरव्यू हो रहा था, एक एग्जांपल जो दिया वही दूंगा फिर से. देखो, हीरा तो हीरा है, हीरा हीरा ही रहेगा हमेशा, वो चेंज नहीं होगा. लेकिन जब तक उस हीरो को पहचानने वाला कोई नहीं मिले, जौहरी भी तो चाहिए ना. खान में से ढूंढ के निकाले, नहीं तो कोयले में दबा रहेगा वो. कोई उसको ढूंढ के निकालता है, फिर कोई उसको पहचानता है, फिर तराशता है. तो वो जो पहचान के तराशता है ना जौहरी, उसके बिना हीरे की वैल्यू नहीं है. तो आप में टैलेंट हो सकता है, एम्बिशन हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है, बट उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, कहाँ ले जाना है, वो इंसान नहीं मिला तो जीवन हो सकता है बहुत देर लग जाएगी. पहुंच जाएंगे आप मंजिल पे, बहुत देर लग जाएगी. मेरे जीवन में भी भाई, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट. मुझे जितने भी टीचर्स मिले लाइफ में, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले. आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, एंड स्पेशली वो गुरु जिन्होंने मुझे फाइनली एक्टिंग क्या है, थिएटर क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, ये सब समझाया. इब्राहिम अलकाजी साहब, द लेट इब्राहिम अलकाजी साहब, लास्ट ईयर ही पास्ड अवे, जो कि एनएसडी के फाउंडिंग डायरेक्टर भी थे. उन्हीं के डायरेक्टरशिप के दौरान नसीर भाई और ओम जी जैसे कलाकार वहाँ से निकले, पंकज कपूर जैसे लोग वहाँ से निकले एनएसडी से. तो उन्होंने अपनी ही ट्रेनिंग अकेडमी शुरू की थी भाई, एडवांस्ड कोर्स इन एक्टिंग एंड डायरेक्शन.
जिसका नाम था द लिविंग थिएटर एकेडमी दिल्ली में। तो वहाँ 4 साल में उनके साथ 92 से 96 तक, वो अब नहीं है, 92 से 96 तक ही एक ही बैच वहाँ से ट्रेन किया उन्होंने। सो आई वाज वन ऑफ दोस फॉर्चुनेट पीपल जो उनकी पर्सनल ट्रेनिंग के अंडर जिन्होंने सीखा एक्टिंग और थिएटर। आई एम वेयरएवर आई एम, व्हाटएवर आई एम टुडे, whatever good in me is there as an actor is because of him. Well, you're talking about Guru sir and the kind of work that you are doing. He's definitely getting his Guru Dakshina somewhere down, up there at heaven. But मुझे एक चीज बताइए sir. I mean, I have been following your career and your work since a very long time, and I must say कि one of my favorites. आप जितने भी वेब शोज कर लो, जितने भी मूवीज आप कर लो, सावधान इंडिया कर लो, जो भी कर लो sir. One of my favorites, right there as the top, has to be the Legend of Bhagat Singh and Absolutely. your portrayal of Sukhdev. Absolutely. So, do you personally enjoy, these kind of patriotic stuff? Because this is also related to the army. So, whenever you get something related to the army or anything which is patriotic, does it give you an additional edge कि हाँ यार ये तो करना ही है? Yes, मैं मानता हूँ ये है, क्योंकि एक तो है यार बचपन देशभक्ति, मतलब मेरे लिए देशभक्ति सिर्फ ये नहीं है कि बातें करना, जी मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ, हमारा देश सबसे महान है। सारे देश अच्छे होते हैं भाई, कोई देश किसी से ज्यादा महान या कम महान नहीं है। हर किसी को अपनी मातृभूमि अच्छी लगती है। अपना शहर, अगर मैं बोलूं कि यार आप अपना शहर वाला मिलता है तो खुशी हो गई, तो मतलब ये नहीं कि मैं बोलूं आपका शहर खराब है, मेरा वाला अच्छा है। आप जहाँ पले बड़े हैं, जो आपकी संस्कृति है, कल्चर है, वो आपको अच्छा लगेगा ही। तो अपना देश अच्छा लगता है, बड़ा अजीब न्यारा किस्म का देश है, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतना सारा किस्म का खाना है, अलग अलग तरह के त्योहार हैं, नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट वेस्ट, कमाल ही है। वी आर सॉर्ट ऑफ अपने आप में एक दुनिया है, वर्ल्ड इनटू इटसेल्फ। तो अच्छा लगता है अपना देश। तो देश से जुड़ी कोई बात जहाँ पर लोगों ने इस देश को बनाए रखने के लिए, लोगों को बचाए रखने के लिए सैक्रिफाइसेस किए, तो गर्व होता है उन लोगों की कहानी सुन के। तो इसीलिए जब फ्रीडम स्ट्रगल की बात हो, या ऐसे लोग जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, या फौजियों की बात हो, ऐसी कहानी सब्जेक्ट बन रही होती फिल्म, तो मेरा मन करता है यार मैं भी कर लूं इसमें। हालांकि इस बार ये जिद के लिए जब मैं गया था, तो मैं ना करने गया था यार, क्योंकि इन्होंने जब मुझे जब कहानी कंसेप्ट बताया, वो लीनियर एक लाइन में बताया कि भाई ऐसे मेजर दीपेंद्र सिंह के साथ, सेंगर के साथ ऐसा हुआ था, और फिर पैरालाइज हो गए, और फिर वो वापस खड़े हुए। तो यार बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है, बहुत ही अच्छा है, सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन मुझे जो रोल दे रहे हो आप, वो क्या है? वो तो शुरू में आएगा, पहले एपिसोड में ट्रेन कर देगा, फिर तो इनकी लाइफ है, और फिर वो एंड में आएगा, वापस ट्रेन कर देगा। तो 2 बार आके ट्रेन ही करना है ना, तो इसमें क्या है? कुछ तो है नहीं। तो वो ना हाँ में कैसे बदला? तो फिर जब विशाल जो हमारा डायरेक्टर है, और जॉयसेन गुप्ता जो को प्रोड्यूसर और को राइटर है, तो ऑफिस में उनसे मिला, बात हुई, उन्होंने पूरा विजन समझाया, ऐसे ऐसे है। फिर कैरेक्टर पे थोड़ा बैठे कि मैंने कहा यार इतना 2 डायमेंशनल नहीं लगना चाहिए, कि एक ट्रेनर है और रूथलेस है और रिलेंटलेस है। So then we sat down and cracked the psyche of this character कि ट्रेन जो कर रहा है इतना रूथलेस है, तो क्यों है भाई? ऐसा तो है नहीं कि इसको मजा आ रहा है, सेडिस्ट तो नहीं है, क्योंकि रोज लोगों को ये तोड़ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो एंजॉयमेंट के लिए तो नहीं कर सकता। And we sort of figured out कि भाई नहीं, ये जो इसकी आंखों में चमक आती है, वो तब आती है जब ये देखता है कि, क्योंकि इसके सामने तो लोग रोज हार रहे हैं, फेलियर इज वेरी कॉमन फॉर हिम, बिकॉज़ बहुत टफ है ये। एंड द टफेस्ट पीपल अप्लाई फॉर स्पेशल फोर्सेस, सो उन टफेस्ट में से भी इतनी हार्ड ट्रेनिंग है कि 100 में से 5 लोग क्वालिफाई करते हैं। सो उसको रोज देख रहा है, लोग भाग रहे हैं, हार रहे हैं, टूट रहे हैं, तो जब देखता है कोई ऐसा बंदा जो टूट नहीं रहा, हार नहीं रहा, तब आंखों में चमक आती है, यस आई हैव फाउंड माय जेम, माय डायमंड, ये है स्पेशल फोर्सेस। तो फिर वो उसकी लिमिट्स परखता है कि कहां तक ले जा सकता हूं मैं, इसकी लिमिट क्या है, कब तक नहीं टूटेगा। तो दैट गेम स्टार्ट्स। तो इसीलिए वो रूथलेस लगता है, बट अंदर से वो तराश रहा है। एक्चुअली बड़ा अच्छा दोहा है, शायद रहीम साहब का ही है, रहीम जी का दोहा है कि गुरु कुम्हार, कुम्हार मतलब जो घड़े बनाता है ना, मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुंभ बोलते हैं घड़े को, कुंभ बोलते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, मार मार के आपके स्मूथ करता है आपकी सरफेस को, अंतर हाथ सहार दे, अंदर से हाथ लगा देता है, बाहर बाहे चोट।
बाहर से चोट मार रहा होता है लेकिन अंदर से हाथ से सहारा अंदर दे से रहा होता है. So that is Colonel Ranjit Chaudhary. And when we figured this out, then I was like, yes. अगर ये है तो फिर करेंगे और पूरा करेंगे 100%. And I think we've created something beautiful in this series. And actually, I mean that as well, because I mean for somebody, I mean I'm looking forward to seeing it in the next couple of days. But somebody who has seen the trailer, from the very first, I mean I think from the very first second itself, it is your voiceover, that inspiration, that motivation that you are giving. So you are that driving force who is actually moving him forward. So it actually plays a very important role. Yes. One question and one part I really liked about that nationalism part, which you said, अपना देश अच्छा होता है, लेकिन it doesn't necessarily mean कि बाकी other countries are bad. It is just like Rabindranath Tagore's nationalism concept, where he says that nationalism is good where you feel very proud about yourself, but narrow nationalism is when you feel कि other countries are bad. Absolutely. So I really admire that point. Yes, absolutely. Last question before I wrap up, because I think we have shortage of time, is the fact कि be it Rangbaz, be it this as well, or maybe कोई भी आप OTT के shows आप बात कर लो. It's not just about your shows, any shows. The freedom that, and probably the creative freedom and liberty that directors and actors have had is the language, and the fact that there's not been any kind of censorship. Now अभी काफी जोरों शोरों से बात चल रहा है कि there will be censorship that will be coming in, and not just with respect to the dialogues but also certain scenes, etc. Do you think it's a good move? Do you think it will actually help in the progression of OTT, or it will take it behind? It's not a good move. I have been anti-censorship for everything. Yes. Humans have evolved. बड़े हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत आगे निकल आए हैं. और अगर हमें ये पता है कि कौन सा नेता चुनना है देश के लिए, कौन सी पार्टी देश चलाएगी, तो हमें ये पता है अच्छी तरह क्या देखना है और क्या नहीं देखना है ना. तो देखने जहां पर चॉइस मेरे हाथ में है, कोई आपको डंडा मार के नहीं दिखा रहा कोई भी चीज, है ना, कि नहीं ये वाली तो देखनी ही पड़ेगी भाई, कोई गवर्नमेंट का आदेश नहीं आ गया. तो आपको अच्छा लग रहा है तो देखिए, अच्छा नहीं है, आपके मन का नहीं है, मत देखिए. आप सिर्फ गाइडलाइंस दीजिए उसमें, जैसे कि यूएस में है कि भैया ये 12+ कंटेंट है या 13+ है या 16+ है, 18+ है. उसके बाद लोग हैं इतने समझदार, क्या देखना है क्या नहीं देखना. बाकी आप जितनी सेंसरशिप लगाएंगे भाई, क्रिएटिविटी तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है. है ना. ईरानी सिनेमा का एग्जांपल मैं सबको दे रहा हूँ आजकल हर इंटरव्यू में. दुनिया का बेस्ट सिनेमा में से है ईरानी सिनेमा, आफ्टर एवरी काइंड ऑफ पॉसिबल सेंसरशिप. कि पॉलिटिक्स पे नहीं बनानी, रिलीजन पे नहीं बनानी, इसका नाम नहीं लेना, उसका नाम नहीं लेना, एंड येट दे हैव मेड मास्टरपीसेस. तो हम भी कम नहीं है भाई, कंटेंट तो हम ले आएंगे. आपको सेंसरशिप लगानी है, लगा दो. क्या बात है. It's like whatever you do, like we will get back with our content and we'll come back stronger. I really hope the same, because I think the breathing space of OTT has been the fact that there has not been any kind of control. So मैं भी यही उम्मीद करता हूँ as a fan of OTT content कि वो ना आए. And thank you so much, sir, for talking to us. It's always a pleasure. And my honor to talk to you all the time. You've been very senior to me, and my love and respect to you. I hope that 2021 is a lovely year forward, and all the best for everything that you're doing. Thank you so much. Thank you, and a lot of love to all your viewers, listeners. Loads of love, and I thank everyone from the bottom of my heart for giving so much love in this long journey, which doesn't feel like a long journey of almost more than 22 years. You've given me so much love. Really. अभी तो start हुआ है सर. हर दिन ऐसे ही लगता है यार. You keep learning so much. ऐसा ही लगे, so that you also continue working and people also continue enjoying and watching. क्या बात है. Thank you, Shubham. Thank you, sir. Take care. Bye. Take care. Bye.